everybody. I am Prashant Bhushan, here to talk about the judiciary and the Aam Aadmi, the problems with the judiciary today, the view of the Aam Aadmi Party about what needs to be done to reform the judiciary, and also about important PILs that we have been doing and their impacts. मैं प्रशांत भूषण आज न्यायपालिका की क्या हालत है हिंदुस्तान में, उसको बदलने के लिए क्या क्या करने की जरूरत है और उसमें आम आदमी पार्टी की क्या पॉलिसी है, और उसके अलावा हाल में कुछ जो इम्पोर्टेंट पब्लिक इंटरेस्ट केसेस हुए हैं उनके बारे में बात करने के लिए आज आया। आप लोग सब जानते हैं कि न्यायपालिका हिंदुस्तान में के संविधान के हिसाब से हिंदुस्तान के राज्य का एक बहुत अहम अंग है। जुडिशरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। न्यायपालिका के दो अहम काम हैं। पहली बात तो जो लोगों के बीच में झगड़े होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको सुलझाना, और दूसरा उससे भी अहम काम है कि जो कार्यपालिका और विधायिका को अपने दायरे में रखना। यानी कि अगर कार्यपालिका या विधायिका अपने दायरे से बाहर जाकर कुछ संविधान के खिलाफ कुछ काम करती है तो उसको रोकना। अगर कार्यपालिका जो उसका काम है वो नहीं करती तो वो करवाना। The judiciary under our constitution has two important functions. The first is to settle disputes among citizens, between the state and the citizens, and the second is even more important, to keep the executive and the legislature within the bounds of their powers. That is, if the executive and the legislature do anything which is unconstitutional, illegal, then it is the duty of the judiciary to step in and quash that. And also, when the executive does not do what is clearly its duty, then it is the job of the judiciary to give suitable directions to the executive to ensure that it does its duty. अगर आज हम ये देखें कि क्या इस मापदंड के हिसाब से हमारी न्यायपालिका खरी उतरती है, क्या इस देश में आम आदमी को न्यायपालिका के द्वारा न्याय मिल रहा है, तो उसका सही जवाब होगा कि करीब करीब ना के बराबर। यानी कि आज अगर ठीक से देखा जाए तो शायद 1% इस देश की जनता भी ऐसी नहीं है जिनको न्यायपालिका के द्वारा ठीक और जल्द न्याय मिल पाता। If we ask the question whether the judiciary is being able to effectively perform its functions in India, the honest answer would be no. There are not even 1% people in this country who are able to get effective and timely justice through the judicial system of this country. इसके कई कारण। पहला कारण तो ये है कि आम आदमी तो न्यायपालिका में प्रवेश ही नहीं कर सकता। यानी कि उसको न्यायपालिका में जाने के लिए वकील की जरूरत होती है, और आम आदमी इस देश का 80% लोग इस देश के वकील की फीस नहीं दे सकते। उनके पास तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं। दूसरा कारण कि अगर वो प्रवेश भी कर सकता है तो उसका केस सालों साल चलता है और उसको 10 साल तक न्याय नहीं मिलता और भटकता रहता है कोर्ट्स में। उसके बाद अगर उसका केस तय भी हो गया तो कई बार हम देखते हैं कि गलत तरह से तय हो जाता है, और गलत तरह से तय होने के भी 2 कारण हैं। एक तो बहुत बार जज जो होते हैं
वो इनकॉम्पिटेंट होते हैं, यानी कि उनको कानून की समझ ही नहीं है, और कई बार भ्रष्टाचार की वजह से गलत फैसले आ जाते हैं। तो इस वजह से आखिर में हार्डली किसी को इस देश में न्याय मिल पाता है इस व्यवस्था के द्वारा। The reasons for why people are not able to get effective justice through this system are several. One, that the common person in this country cannot afford lawyers, without which he cannot even access the judicial system. Even if he succeeds in accessing the system, somehow we find that mostly cases linger on for decades and people are denied effective justice. Even if you are accused of an offense, falsely accused of an offense by the police, you have to suffer for years in the courts before you are acquitted, even if you can engage proper lawyers to fight your defense. And then we find that even when cases come to be decided, they are often decided wrongly because of incompetence of the judge or because of corruption of the judge. And there is another problem, which is the elitist attitude of judges in this country, especially in the higher courts, in the high courts and the Supreme Court. They are, by and large, judges are not sensitive, not aware of the problems faced by common people of this country, because they come from elite, upper middle class background. तो ये सब सुधारने के लिए कई तरह के सुधार की जरूरत है। पहले तो हमको व्यवस्था ऐसी बनानी पड़ेगी, कानूनी व्यवस्था, जिसमें आम आदमी सीधे न्यायपालिका में प्रवेश कर सके बगैर किसी वकील के। उसके लिए हमको कोर्ट के प्रोसीजर्स को बहुत सिंप्लीफाई करना होगा। उसके लिए ये इंश्योर करना होगा कि कोर्ट जो है गांव तक, और गांव तक नहीं तो कम से कम ब्लॉक तक पहुंचते हैं, जिससे कि आम आदमी को दूर ना जाना पड़े न्यायपालिका में प्रवेश करने के लिए। उसके अलावा हमको काफी कोर्ट्स बनाने पड़ेंगे, इतने कोर्ट्स जिससे कि हर मामला ज्यादा से ज्यादा 1 साल में तय हो पाए। उसके अलावा हम लोगों को न्यायाधीशों का, जजों का सिलेक्शन यानी कि अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया में पारदर्शिता लानी होगी, एक सिस्टम बनाना होगा, क्राइटेरिया बनाना होगा, और एक फुल टाइम सरकार से स्वतंत्र जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बनाना पड़ेगा। इसके अलावा हम लोगों को न्यायाधीशों की जवाबदेही के लिए, क्योंकि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैंने अभी करीब 4 साल पहले एक इंटरव्यू में, 3 साल पहले एक इंटरव्यू में कह दिया था कि इस देश में जो मुख्य न्यायाधीश हुए हैं पिछले 16-17, उसमें से कम आधे भ्रष्ट थे। इस पर मुझे कंटेम्प्ट का नोटिस इशू कर दिया गया, और वो केस सुप्रीम कोर्ट में आज भी पेंडिंग है, 3-4 साल से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ये बात मैंने इसलिए कही, उसके बाद जब उन्होंने कंटेम्प्ट नोटिस इशू किया तो मैंने उसका जवाब दिया, और जवाब में सबके नाम दिए और बोला कि क्यों हमने उनको भ्रष्ट बोला है, इस आधार पर भ्रष्ट बोला। तो आज हम देखते हैं कि न्यायपालिका की कोई जवाबदेही नहीं है। अगर कोई भ्रष्ट जज होता है तो आप किसी के पास उसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं कर सकते, कोई कंप्लेंट्स अथॉरिटी नहीं बनाई गई, कोई डिसिप्लिनरी अथॉरिटी नहीं है न्यायाधीशों के ऊपर, खासकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर। अगर आप किसी जज के भ्रष्टाचार का खुलासा करते हैं तो उस पर आपके ऊपर कंटेम्प्ट का केस चलाया जा सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। और अब तो सूचना के अधिकार के तहत भी जजों को उसके बाहर कर दिया गया है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे फैसले दिए हैं या हर केस में जब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने न्यायपालिका के बारे में कुछ सूचना देने के लिए बोला है, तब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। तो आज हम देखते हैं कि न्यायाधीशों को अधिकार तो बहुत है, उनकी पावर बहुत है कि वो विधायिका, कार्यपालिका किसी को भी आदेश दे सकते हैं, कोई भी कानून रद्द कर सकते हैं, पॉलिसी रद्द कर सकते हैं,
कोई फैसला रद्द कर सकते हैं लेकिन कोई जवाबदेही नहीं। तो इसके लिए हम लोगों को एक जुडिशियल कंप्लेंट्स कमीशन बनाना पड़ेगा जो सरकार से भी स्वतंत्र हो और न्यायपालिका से भी स्वतंत्र हो, और जिसमें कोई भी आम आदमी किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ कंप्लेंट कर सके और वो उसकी पारदर्शिता के साथ उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करके, और अगर कुछ ठोस मिलता है जज के खिलाफ तो उसको बर्खास्त भी कर सकते हैं। ये पावर जुडिशियल कंप्लेंट्स कमीशन के पास होनी चाहिए। So in order to set right or have effective judicial reforms, we need to firstly make the judicial system such that the common man can approach the judiciary without the intermediary of a lawyer, which means you have to simplify the procedures of the courts to such an extent that even a common man can approach the court by saying, this is the injustice that has been done to me, and please redress this. And the judiciary should have the capacity to take on board these kinds of complaints and take action on that. Secondly, we need to bring the courts down to the block level and possibly to the village level, at least circuit courts in the block levels, even in the village level. Then we need to have enough courts in the country to ensure that all cases will be decided within 1 year at most. Then we need to put in place an independent judicial appointments commission, which should be a full-time body, which should have people who are independent of the government, and which should set up a proper system, transparent system of first a criteria and then a transparent system of selecting judges on the basis of that criteria. And then we need to put in a proper system for accountability of judges. Today, nobody can complain against judges. There is no authority which has any disciplinary power over judges of the higher judiciary. Even if you expose a judge, you run the risk of contempt. They have even insulated themselves from the Right to Information Act by staying every decision of the Central Information Commission regarding grant of any information about the judiciary. So therefore, judiciary is an institution which has enormous power with no accountability whatsoever. And this needs to be set right by setting up an independent judicial complaints commission, which should be independent of the government, which should also be independent of the judiciary, which should have the power to take on board complaints made by any citizen against the judiciary and take action against the judges. The Aam Aadmi Party is committed to all these reforms that I have just mentioned in the judiciary. Aam Aadmi Party पूरी तरह से प्रतिबद्ध है न्यायपालिका में ये सब सुधार करने के। लेकिन ये सब प्रॉब्लम्स के बावजूद भी हम लोग कई बार जहां जनहित के मामले होते हैं वहां पर हम लोग न्यायपालिका जाते हैं, न्यायपालिका के दरवाजे खटखटाते हैं, और कई पब्लिक इंटरेस्ट केसेस में हम लोगों को सफलता भी मिली है। चाहे ज्यादातर केसेस तो ऐसे हैं जो कि बहुत अहम केसेस हैं, तो न्यायपालिका में सालों साल लंबित रहते हैं और उसमें कुछ फैसला ही नहीं हो पाता। बहुत सारे जो बिल्कुल वाजिब केसेस हैं, बिल्कुल सही पब्लिक इंटरेस्ट केसेस हैं, वो भी डिसमिस हो जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जजों का एटीट्यूड, ज्यादातर जजों का एटीट्यूड जो है सरकार के फेवर में होता है, वो सरकार के साथ काम करते हैं, सरकार से स्वतंत्र पूरी तरह से नहीं हो पाते, और बहुत सारे जज, कई सारे जज हमने देखा है कि भ्रष्ट भी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कई अच्छे, ईमानदार और स्वतंत्र जज हैं सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में, और इसकी वजह से जब और कोई चीज कामयाब नहीं होती, जब हम लोग ने आंदोलन भी करके देख लिया वो भी कामयाब नहीं है,
तो आखिर में हम लोग न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाते हैं और कई पब्लिक इंटरेस्ट केसेस हम लोगों ने वहां करे हैं। Despite all these problems with the judiciary, we do still approach the judiciary in important public interest cases, because when all other avenues have failed, the judiciary still remains the last resort. And in some cases, we do and have achieved success, though in most cases, in the majority of cases, even those cases which are perfectly justified in public interest, the judiciary does not respond. The cases remain pending for years altogether, or they are often wrongly decided because the judge is either pro-government or corrupt. But despite all this, there are still a few and several independent and honest judges in the high courts and in the Supreme Court. And because of those few honest and independent judges, we have achieved some success in several public interest cases. कुछ केस जिसमें कि हम लोगों को अच्छी सफलता मिल पाई है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट केसेस में, वो एक तो 2G घोटाले वाला मामला है। आप लोग सब जानते हैं कि जब सरकार ने राजा कनिमोझी वगैरह ने मिल मिलाकर, और उसमें तो हम लोगों का ये मानना है कि चिदम्बरम साहब भी मिले हुए थे, इन लोगों ने कौड़ियों के दाम पर टेलीकॉम स्पेक्ट्रम दे दिया ये बड़ी बड़ी कंपनियों को, ऐसी ऐसी कंपनियों को जो एलिजिबल भी नहीं थी टेलीकॉम के लिए, जो टेलीकॉम में इन्वॉल्व भी नहीं थी, और उन्होंने तुरंत अपने लाइसेंसेस को उससे कई गुने दाम पर बेच दिया। उस मामले में हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए और हम लोगों ने एक तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन की मांग करी, और दूसरा इन लाइसेंसों को रद्द करने की मांग करी, और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही मांग हमारी स्वीकार कर ली। और आज एक सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में CBI का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जिसमें कि कई लोगों को पकड़ा गया है और उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। हम लोग ये मानते हैं कि अभी भी CBI पूरा ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग के बावजूद भी, लेकिन खैर फिर भी कुछ चीजें तो हुई हैं, उसमें कई चीजें हुई हैं। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने लाइसेंस भी रद्द कर दिए और अब बोला है कि अब जो नए लाइसेंस दिए जाएंगे वो ऑक्शन करे जाएंगे, उसकी नीलामी होगी। One of the cases in which we have been successful recently is the PIL regarding the 2G spectrum scam, where we had asked for a CBI court-monitored CBI investigation or an SIT investigation. The court agreed and has been monitoring the CBI investigation. We had also asked for cancellation of the licenses. Supreme Court also cancelled the licenses and have directed the government to auction these licenses which have been cancelled. इसके अलावा एक CVC के अपॉइंटमेंट को हम लोगों ने चैलेंज किया था। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के चेयरमैन को अपॉइंट किया था सरकार ने, ऐसे आदमी को जिसके खिलाफ खुद ही विजिलेंस का केस चल रहा था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था उसके अपॉइंटमेंट को। We had also challenged the appointment of the chief vigilance commissioner, who was a man who himself was facing a vigilance case for corruption, and the Supreme Court accepted our petition and quashed that appointment. हाल में हम लोगों ने CAG का जो अभी नया अपॉइंटमेंट हुआ है, डिफेंस सेक्रेटरी को CAG अपॉइंट कर दिया गया है। जिन डिफेंस सेक्रेटरी ने सारे ये डिफेंस के परचेजेस किए और उन्हीं को CAG अपॉइंट कर दिया है, जबकि उनका बड़ा सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। यानी कि वो अपने ही सौदों का ऑडिट करेंगे जो उन्होंने खुद ही सौदे किए, क्योंकि मेन CAG के ऑडिट्स जो होते हैं वो डिफेंस परचेजेस के होते हैं, और भी सारे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स के होते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा खर्चा डिफेंस परचेजेस का होता है।
दूसरा ग्राउंड जिस पर हम लोगों ने चैलेंज किया वो ये है कि सीएजी के अपॉइंटमेंट में कोई सिस्टम ही नहीं है, बिल्कुल आर्बिट्ररी तरीके से अपॉइंटमेंट किया जाता है, कोई क्राइटेरिया नहीं ले डाउन किया गया है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं इशू किया जाता, सरकार जिसको चाहे आर्बिट्ररली उठाकर सीएजी अपॉइंट कर देती है। तो हमने बोला है कि इसका एक पारदर्शी और एक प्रॉपर सिस्टम ले डाउन किया जाए, जिससे कि कम से कम आगे सीएजी के अपॉइंटमेंट्स ठीक से हो सके। ये केस अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। We have also challenged the appointment of the present CAG who has recently been appointed. He was the defense secretary and he will have a serious conflict of interest in his present job because he will be auditing the purchases which he himself ordered in the defense department, and defense purchases are a major part of the CAG's audit. Apart from that, we have also said that there is no system at all for selecting CAGs. There is no criteria which has been made. There is no shortlisting committee which has been made. There is no advertisement which is issued, and therefore government just plucks anybody from anywhere and appoints him as CAG, which is completely arbitrary and unconstitutional. इसके अलावा हम लोगों ने कई केसेस आम आदमियों की तरफ से, झुग्गी वालों की तरफ से, क्योंकि उनको विस्थापित कर दिया जाता है बगैर कोई दूसरी अल्टरनेटिव रिहैबिलिटेशन दिए, जबकि सरकार की कम से कम दिल्ली में डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि उनको एक कम से कम 12 गज की जमीन दी जाएगी। बगैर जमीन दिए उनको विस्थापित कर दिया जाता है। उसमें हम लोगों ने बहुत सारे केसेस में कोर्ट से ऑर्डर करवाए कि भाई हाँ, इनको रिहैबिलिटेशन दिया जाए, और बगैर उनको पहले रिहैबिलिटेशन दिए उनकी झुग्गियां तोड़ी ना जाए। इसी तरह से यहाँ दिल्ली में रिक्शा वालों के ऊपर तरह तरह की पाबंदी लगा दी गई थी कि रिक्शा मेन आर्टीरियल रोड्स पर चली नहीं सकती, ज्यादातर दिल्ली में चली नहीं सकती। तो रिक्शा के कुल 90,000 लाइसेंस दिए जा रहे थे, जबकि दिल्ली में 6 लाख रिक्शा चल रहे थे, और बाकी रिक्शा वालों को बार बार पुलिस वाले परेशान करते थे। इस पर हम लोग हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने बड़ा अच्छा फैसला दिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया, और उन्होंने बोला कि ये इस तरह से आर्बिट्ररी रिस्ट्रिक्शन रिक्शाओं के ऊपर नहीं लगाया जा सकता। रिक्शा एक बहुत इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट का तरीका है छोटे छोटे डिस्टेंसेस के लिए, जिसमें कि बहुत सारे लाखों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, और एक वो पोल्यूशन फ्री, एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीका है ट्रांसपोर्टेशन का। तो ये सारे रिस्ट्रिक्शंस जो लगाए गए थे दिल्ली पुलिस द्वारा और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा, ये सब रद्द कर दिए गए। हाल में उन्होंने हम लोगों को रोकने के लिए ऑटो रिक्शास पर एडवर्टाइजमेंट्स पर बैन लगा दिया था, क्योंकि उस पर कई ऑटो रिक्शास के पीछे आम आदमी पार्टी के पोस्टर्स लगाए जा रहे थे। तो उन्होंने बोल दिया कि अब से आगे से ऑटो रिक्शा और टैक्सी पर कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं हो सकता। इसको हम लोगों ने चैलेंज किया हाल में हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया है। इसी तरह से स्ट्रीट वेंडर, जो रेडी पटरे वाले हैं, जो कि छोटा छोटा सामान बेचते हैं सड़कों पर, उन पर तरह तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे सरकार ने। उसको भी हम लोगों ने चैलेंज किया, और उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे ऑर्डर्स किए हैं सरकार के इन रिस्ट्रिक्शंस को हटाने के लिए, और उन लोगों को वापस अपनी अपनी जगह वेंडिंग करने देने के लिए। There are also a number of PILs that we had filed on behalf of the Aam Aadmi, that is the Jhuggi dwellers, whose jhuggis are often demolished to give the land to commercial developers and who are not provided with any rehabilitation. So the High Court has passed important orders in these and ordered rehabilitation of these Jhuggi dwellers, and have restrained the government from demolishing jhuggis without first giving them alternate spaces. Similarly, street vendors, all kinds of restrictions have been imposed by the government on street vendors. We again went to courts and got these restrictions removed. Similarly, on rickshaw pullers, all kinds of restrictions have been imposed on rickshaw pullers, that there can't be more than 90,000 rickshaws in the city, when in fact there were
over 6 lakh rickshaws which were being plied in the streets of Delhi. The High Court removed all those restrictions and has directed the government to allow rickshaws to be plied on arterial roads, etc. इसके अलावा हम लोगों ने और भी कई इम्पोर्टेंट PILs फाइल करे हैं। एक जो आजकल आप लोग सुन रहे होंगे कि कोल गेट के ऊपर ये जो कोल का स्कैम हुआ है, जिसमें कि बहुत सारे लाइसेंसेस कोयले के लीजेस दी गई हैं, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों को, कई बार मिनिस्टर्स की ही कंपनियों को कोल की लीजेस, कोयले की खदानें दे दी गई, जिसमें लाखों करोड़ का कोयला है और बिल्कुल फ्री में दे दी गई इन कंपनियों को। उसको हम लोगों ने चैलेंज किया है। उसमें भी हम लोगों ने कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन और उन लाइसेंसों को रद्द करने की मांग करी है। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें मॉनिटरिंग शुरू कर दी है इन्वेस्टिगेशन की, और अब रद्द करने वाली हम लोगों की जो मांग है उसकी अब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि इस केस में हम ये भी देखेंगे कि भाई CBI को सरकार के चंगुल से छुड़ाने के लिए क्या क्या आदेश दिए जा सकते हैं, क्या क्या आदेश देने की जरूरत है, वो भी उस केस में सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। Another important case that we have filed recently is in this Colgate scam, where we have asked for a court-monitored investigation in this coal scam, where large number of coal leases worth lakhs of crores have been given for free to companies, large, big companies which give bribes to the government, or to companies which were associated with the ministers, etc. The Supreme Court has initiated the monitoring of the CBI investigation in this case. They have also said that they will go into the question of CBI's autonomy from the government, because in this case they found that the CBI is being controlled and the CBI investigation is being directed and deflected by the government to save the skins of their own ministers, etc. Supreme Court is also now going to hear our petition for cancelling all these coal leases. So this is also an important case which has been going on. इसके अलावा हम लोगों ने एक पिटिशन जुडिशल रिफॉर्म्स के ऊपर भी डाल रखी है कि न्यायपालिका में जो रिफॉर्म्स की जरूरत है वो सब सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना चाहिए सरकार को करने के लिए, कोर्ट्स को बढ़ाने का, कोर्ट्स का प्रोसीजर सिंप्लीफाई करने का, वगैरह वगैरह। वो भी पिटिशन अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि देखिए, जितने केस में हम लोगों का कुछ सक्सेस होता है उससे ज्यादा केस जो है, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं, चाहे एयर इंडिया के स्कैम का हो, चाहे स्कॉर्पियन सबमरीन स्कैम का हो, वो सालों साल लंबित रहते हैं या फिर खारिज हो जाते हैं। जैसे हम लोगों ने केन वेदांता की जो ये गैस ऑयल की लीजेस जो दी गई हैं, या पन्ना मुक्ता की जो ऑयल की लीज दी गई, उसमें भी PIL फाइल किया था, लेकिन ये सब खारिज हो गई। तो ये जो हमने सक्सेस स्टोरीज बताई हैं, ये थोड़ी सी सक्सेस स्टोरीज हैं, लेकिन ज्यादातर हम देखते हैं कि न्यायपालिका में या तो ये केस लंबित रहते हैं या खारिज हो जाते हैं, और इसी वजह से न्यायपालिका में बहुत सारी की जरूरत है। These few cases that I have mentioned, which are success stories of PILs, are only a few cases out of a large number of cases which either remain pending or which get dismissed, such as our case regarding this Kane Vedanta oil fields deal, where these huge oil fields have been given to Kane and now to Vedanta for nothing, where they are extracting oil at $3 a barrel and are selling the same to the government at more than $100 a barrel. This petition was dismissed, in my view, totally wrongly by the Supreme Court. Similarly, Panna Mukta oil fields deal, in which developed oil fields were given to Reliance for a song, that was also dismissed. Our petition regarding Air India scam, Scorpion submarine scam, and so many other scams are still pending in the courts. So therefore, the success stories are few and far between, and that is why I have been saying that we need serious judicial reforms, which the Aam Aadmi Party is committed to. Now I would be happy to answer any questions. Yeah, flash कर दीजिए एक बार.
This is the number that. So this is the number on which you can ask questions. I'm reading out the number. It's 8588333517. I repeat again. 858888333517. Can I just come in one? So Prashant ji's questions already started coming in. I have a lot of questions in my hand already. So there's one question. एक साथी पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में मुंबई में एक कॉन्क्लेव हुआ था जिसमें गोपीनाथ मुंडे ने क्लेम किया 8 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए और एक तरह से उन्होंने खुली चुनौती दी कि जिससे जो करना है कर ले। सवाल ये है कि जुडिशरी के पास ये ऐसा रास्ता है जिससे इनको 3-4 साल 5 साल के लिए बुक किया जा सके। देखिए, इस पर गोपीनाथ मुंडे ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है, इस पर इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी उनको नोटिस इशू कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के पास पावर ये है कि अगर कोई अपना इलेक्शन रिटर्न ना फाइल करे तो उसको 3 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो इलेक्शन कमीशन इस आधार पर चल रहा है कि गोपीनाथ मुंडे ने डिक्लेयर तो अपना 19 लाख किया एक्सपेंडिचर, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने एक्चुअली 8 करोड़ खर्च किया। तो उसको इलेक्शन कमीशन ये मान रहा है कि भाई आपने जो आपका एक्सपेंसेस थे वो नहीं डिक्लेयर किए और इस आधार पर वो कह रहे हैं कि क्यों ना आपको 3 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया जाए। न्यायपालिका के पास तो नॉर्मल पावर तो ये है कि भाई आप इलेक्शन पिटीशन फाइल कर सकते हैं गोपीनाथ मुंडे के खिलाफ कि उन्होंने जितना मैक्सिमम परमिसिबल 40 लाख जो है उससे ज्यादा खर्च किया है, वो खुद ही कह रहे हैं। लेकिन अब अगर इलेक्शन पिटीशन फाइल भी होती है तो वो ये जो पार्लियामेंट का टर्म है उससे पहले खत्म ही नहीं होगी। यही सारी प्रॉब्लम इनफैक्ट हिंदुस्तान में है। जितनी इलेक्शन पिटीशंस फाइल करी जाती हैं, जैसे चिदम्बरम साहब का तो सिर्फ काउंटिंग का इशू था, सिर्फ रिकाउंट का, कि उन्होंने पहले तो रिटर्निंग ऑफिसर ने डिक्लेयर किया कि चिदम्बरम हार गए हैं, फिर इन्होंने कुछ प्रेशर डलवाया डीएमके के द्वारा, डीएमके की सरकार थी उनके द्वारा प्रेशर डलवाया रिटर्निंग ऑफिसर पर और उसने फिर ये अनाउंस कर दिया कि वो जीत गए हैं। तो उनके ओपोनेंट ने इलेक्शन पिटीशन फाइल करी कि भाई इस पर रिकाउंट करके देख लीजिए, तो सिर्फ काउंटिंग का मामला है, ये कुछ ही बूथ्स का रिकाउंट होना है। चिदम्बरम ने 5 साल हो गए उस पिटीशन को पेंडिंग हुए, अपना इन्फ्लुएंस जुडिशरी के ऊपर लगा कर आज तक रिकाउंट भी नहीं होने दिया और वो केस अभी तक लंबित है। तो आज प्रॉब्लम तो जुडिशरी की ये है कि अगर हम न्यायपालिका में जाते भी हैं तो ये टर्म तो उनकी अब 6 महीने 8 महीने में खत्म हो रही है, उसके पहले तो कुछ होगा नहीं। तो इसलिए उसका कोई फायदा नहीं होगा। बेस्ट यही है कि इलेक्शन कमीशन जो कर रही है, जब तक हम लोग न्यायिक सुधार नहीं करेंगे तब तक इसका फायदा नहीं। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है प्रशांत जी, पैड मीडिया और पैड न्यूज ये हम सुनते रहते हैं। अभी हाल ही में खबर आई थी कि ये बात सबको पता चली कि अरविंद जी के घर का बिजली का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुआ, लेकिन तभी एनबीटी नवभारत टाइम्स में खबर आई कि ये सब एक पब्लिसिटी था। क्या कोई ऐसा रास्ता है जिस तरह से पेड न्यूज जो है इसके ऊपर नकेल कसी जा सके? सवाल देखिए, पेड न्यूज जो है कायदे से तो ये ब्रीच ऑफ जर्नलिस्टिक एथिक्स है, यानी कि नॉर्मली प्रेस काउंसिल के पास ये कंप्लेंट जानी चाहिए। प्रेस काउंसिल ने इसके ऊपर एक रिपोर्ट भी निकाली थी पेड न्यूज के ऊपर, और प्रेस काउंसिल को एक्शन लेना चाहिए उस मीडिया के खिलाफ, लेकिन प्रेस काउंसिल को कोई खास पावर ही नहीं दी गई। तो इस वजह से ये भी एक सीरियस रिफॉर्म्स हिंदुस्तान में होने की जरूरत है, जिसको हम मीडिया रिफॉर्म्स कहते हैं। प्रेस काउंसिल को रिफॉर्म किया जाए। उसका पहली बात तो उसमें लोगों के चयन की प्रक्रिया पारदर्शी हो, सिलेक्शन ठीक से हो प्रेस काउंसिल के लोगों का, और फिर प्रेस काउंसिल को पूरी पावर दी जाए मीडिया के ऊपर एक्शन लेने की। मीडिया को बंद करने की भी पावर प्रेस काउंसिल के पास होनी चाहिए एक्सेप्शनल केसेस में। ऐसे पेड न्यूज वाले केसेस में उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन की पावर प्रेस काउंसिल को कायदे से होनी चाहिए।
लेकिन आज के डेट में नहीं है। अब इसमें भी शायद कोई PIL हो सकती है इस पर, लेकिन वही है कि ये सब केसेस पेंडिंग रहते हैं। और आजकल मीडिया की इतनी पावर है इस देश में कि बाय एंड लार्ज आप देखेंगे कि मीडिया पर कोई रेगुलेशन कोई होने ही नहीं देना चाहता। उसी तरह जैसे जुडिशरी के ऊपर कोई रेगुलेशन कोई होने नहीं देना चाहता, ये लोग सब मिल जाते हैं, सरकार, जुडिशरी वगैरह सब मिल जाते हैं कि इन पर कोई रेगुलेशन ना हो पाए, और वही चल रहा है। एक सवाल ट्विटर से पूछा है हमारे एक साथी हैं राहुल सिंह परिहार, is asking if a bench of multiple judges, then also is it possible for them to get corrupt? Any judicial self cleanup process is there or not? देखिए, जुडिशरी में the judiciary has set up what they call an in-house machinery for inquiring into complaints against judges, but that is only on paper. They say that if somebody makes a complaint against a judge, the Chief Justice will set up a committee of 3 judges, sitting judges, to inquire into that complaint. But we have made so many complaints which have been just thrown into the waste paper basket. Only once in a while this in-house procedure has been invoked. By and large, it doesn't function. And by and large, when you appoint sitting judges to inquire against their own brother judges, they find it very embarrassing to pass any serious order against their own brother judges. And that is why this doesn't work. And that is why we have been saying that we need a judicial complaints commission which is completely independent of the government as well as of the judiciary. It should be a full-time constitutional body which should have the power to inquire into any allegations against any judge of the higher judiciary, and for the lower judiciary there should be another similar body like that. एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हमारे साथी हैं सुमित कश्यप शाह, वो पूछ रहे हैं प्रशांत जी आपकी लोकपाल रिपोर्ट का क्या होगा? देखिए, हमारे खिलाफ किसी ने कोई फॉर्मल कंप्लेंट नहीं डाली। अब जो एलिगेशंस वगैरह आए थे वो ऐसे वेग से थे कि उसको हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि उसको फॉर्मुलेट करके और कोई चीज लोकपाल को दे दें, लेकिन हम लोगों ने बोला था कोई जना कंप्लेंट फाइल करे, कोई फॉर्मल कंप्लेंट हम लोगों को भेजे, तब फिर उसको लोकपाल में भेजा जाए। किसी ने कोई फॉर्मल कंप्लेंट जिसमें कि कोई डिफाइंड आइडेंटिफाइड चार्ज हो वो दिया नहीं। अब लोग एक कंप्लेंट कह रहे हैं हमारे खिलाफ कि भाई हमने कोई जमीन, हमको कोई चाय का बगीचा हिमाचल में दे दिया गया। अब उसका फैक्ट ये है कि पहली बात तो सरकार ने कोई बगीचा ना तो हमको ना हमारी किसी संस्था को दिया। हमारी एक एजुकेशनल संस्था है जिसमें हम भी हैं, हमारे पिताजी भी हैं और हमारे फैमिली मेंबर्स भी हैं, जो कि एक चैरिटेबल एजुकेशनल सोसाइटी बनाई गई है। उस सोसाइटी ने सिर्फ सरकार की परमिशन ली थी एक पुराना 12 एकड़ का चाय का बगीचा खरीदने के लिए, जहां पर एक पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट और एक चिल्ड्रंस लर्निंग सेंटर और स्कूल बनाया जा रहा है। इसके लिए मेरे पिताजी ने 5 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं उस चैरिटेबल संस्था को, जिसके आधार पर ये जमीन खरीदी गई और वहां पर ये इंस्टीट्यूट बनाया गया जो कि चल रहा है। अब कोई जना कोई फॉर्मल कंप्लेंट भेजे जिसमें कि फॉर्मल लिखे कि भाई क्या चार्ज है, क्या चीज, किस पर इंक्वायरी करें, ऐसे वेग कह देना कि भाई इनको सरकार ने कुछ जमीन दे दी वगैरह, उससे क्या मतलब, वो भी मीडिया में लोग वेगली कुछ कह देते हैं। तो इसलिए ये तय किया गया था कि कोई कंप्लेंट तो आए जिसमें कि कोई चार्ज लगाए, तब फिर वो लोकपाल को दिया जाए। सुतीक्षण दुबे हमारे एक साथी हैं, ट्विटर पे पूछ रहे हैं, व्हाई नॉट द केस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड फाइल्ड अगेंस्ट टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ उत्तराखंड फॉर इग्नोरिंग एमिटी वार्निंग्स? हाँ, ये एक बहुत अहम सवाल है। देखिए, उत्तराखंड में जो हुआ है, एक तो खैर काफी जोर की बारिश हो गई,
जिसको कहते हैं क्लाउड बर्स्ट टाइप की बारिश हो गई, लेकिन ये बारिश तो पहले भी होती रही है, हुई है। लेकिन जो कहर हुआ है उत्तराखंड में, उसके बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसमें सरकार और सरकारी अफसरों की नेग्लिजेंस इन्वॉल्व है, तरह तरह की नेग्लिजेंस। पहली नेग्लिजेंस तो ये है कि उन्होंने मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वार्निंग्स लोगों के पास नहीं पहुंचाई। मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट कह रहा है कि उन्होंने सरकार को 16 जून को ही वार्न कर दिया था कि भाई अगले 3 दिन तक बहुत जोर की बारिश यहाँ होने वाली है। वो वार्निंग सरकार और सरकारी अफसरों ने नहीं पहुंचाई। दूसरी नेग्लिजेंस ये है कि सरकार और सरकारी अफसरों ने बिल्कुल नदी के तट पर होटल, धर्मशाला वगैरह बहुत सारे बनने दिए, जो कि सारे रूल्स रेगुलेशंस के खिलाफ थे। तीसरी नेग्लिजेंस ये है कि बहुत सारे हाइडल प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन नदियों के ऊपर बनाए गए हैं। कहते हैं कि उत्तराखंड में 500 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, 500 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन नदियों के ऊपर बनाए गए हैं या बनाए जा रहे हैं या बनाए जाने की अनुमति दी जा चुकी है। इसका कोई भी एनवायरमेंटल अप्रेजल नहीं किया गया कि इसका क्या पर्यावरण के ऊपर इफेक्ट होगा, क्योंकि जब ये हाइडल प्रोजेक्ट्स बनते हैं उसके लिए रोड्स बनती हैं, ब्लास्टिंग होती है, फॉरेस्ट काटे जाते हैं, हिल्स सारी डिस्टेबलाइज हो जाती हैं, उसका मलबा नदी में जाता है, इससे तरह तरह के नुकसान होते हैं। लेकिन इन सब चीजों को अनदेखा करके, और इसमें सारे ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इन्वॉल्व है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसमें वहां के लोकल ऑफिशियल्स उत्तराखंड के इन्वॉल्व हैं, सब लोग इन्वॉल्व हैं। तो इस पर एक PIL सोची जा सकती है। वंदना शिवा, हिमांशु ठक्कर और मैं अभी हाल में मिल रहे हैं और हम लोग इस पर विचार करेंगे कि इस उत्तराखंड में खासकर ये जो हाइडल प्रोजेक्ट्स जो बनाए जा रहे हैं या जो बनाए गए हैं, इस पर क्या किया जा सकता है। प्रशांत जी, एक साथी हमारे अरविंद पूछ रहे हैं कि what's the way forward to fight anti-RTI ordinance moved by political parties? See, we have issued a joint statement today. You might have seen it has been reported in some of the media that a lot of very senior activists, including Arvind, myself, Aruna Roy, this Harsh Mandar, Shekhar Singh, Shailesh Gandhi, everybody have joined together and have issued a very strong statement condemning this move by the government to issue this ordinance, which is designed to prevent political parties from coming under RTI. If the government still persists and goes ahead with this ordinance, then it can be challenged in the courts, and we will challenge it in the courts on the ground that it violates fundamental rights under Article 19(1)(a), because the Supreme Court has held. Actually, we had earlier also filed one petition before the RTI Act had come, a PIL saying that the government should put in place a effective machinery for effectuating this right, which has been declared by the Supreme Court to be a fundamental right under Article 19(1)(a) of the Constitution. Therefore, there is a good ground for challenging it and seeking it to be struck down. Earlier also, when the Supreme Court had directed that all candidates contesting elections must declare their assets, liabilities, their criminal antecedents, etc., the government tried to overrule this judgment by an ordinance, and that ordinance was by a law. That law was challenged in the Supreme Court, and the Supreme Court struck down that law on the ground that it violates the fundamental rights under Article 19(1)(a). So we can try the same thing against this ordinance also. Ganesh पूछ रहे हैं कानपुर से, can we file a PIL to make 20-30 years long court cases time bound? See, we can file that PIL, but it will not have any effect, because today when the whole judicial administration or the judicial machinery is in a state of collapse, when there aren't enough judges, when the whole system has collapsed, then there is no point in issuing such a or seeking such a direction, because it cannot be implemented.
We can, however, seek effective judicial reforms to increase the number of courts, to simplify the procedures in the courts, to use more information technology in courts, etc., which is what we have already done, and that is pending in the Supreme Court. But unfortunately, even this case has been pending for the last 5 years, and it is not being decided. It's just moving slowly because the judiciary does not treat this to be a matter of great significance, etc. by and large. अगला सवाल है राजीव मिश्रा पूछ रहे हैं. I think सवाल और जवाब साथ में बता देता हूँ मैं. Is Prashant, do you think is there any reality in this talk going on about making CBI independent? ये बकवास है. अगर आप ये देखें, if you see the kind of committee or the GOM that the government made on CBI autonomy, all 5 are crooked ministers. Some of them are thoroughly dishonest. Mr. Chidambaram, Mr. Salman Khurshid, Mr. Kapil Sibal, against whom we had issued charge sheets, very serious charge sheets. Then you have Manish Tiwari and Narayan Swamy. Now, these are not people who you can expect will try and do anything to make the CBI autonomous. CBI autonomy or freeing the CBI from the government's control needs freeing the CBI from the administrative control of the government. So long as the government has the power of transfers, promotions, suspensions, etc., till that time the CBI can never be freed from government's control. Therefore, unless this power, administrative control over the CBI, is removed from the government and given to some independent authority like Lokpal, CBI will continue to remain under government control, which is what they want. And therefore, all these steps that they have suggested are a mere eyewash. They are just designed to mislead the people into believing that something real is being done for CBI autonomy. There's another question from Asif is asking, what is the guarantee that after coming to power, Aam Aadmi Party will not go on behalf like the corrupt party as BJP and Congress? So there is no guarantee for anything. All that we can say is that we will get an independent Lokpal created within the first 1 month of our coming to power, which means that an independent authority will be created which will catch hold of any of our people also who become corrupt. Today the problem is that there is no authority which is independent of the government which can investigate and take action against corrupt ministers, etc. And we as a party, our first commitment is to ensure that such an independent authority is created. Apart from that, we are also saying, and we hope to make good on that promise, that we will actually remove a lot of power that today vests with the elected representatives, with the MPs, with the ministers, etc. And that power will be transferred directly to the people. And therefore, the whole issue of corruption in the government would become less important because the power of the government would itself become less important and less than it is right now. This is a technical question being asked about United Nations Convention against Corruption. कहा यह जा रहा है कि UNCSC के 24 इंडियन गवर्नमेंट ने साइन किया हुआ है जिसमें ये बात कही गई है कि आप एक इंडिपेंडेंट एजेंसी प्रोवाइड करेंगे किसी भी तरह के केसेस के स्कैम्स के इन्वेस्टिगेशन के लिए. इंडिया इसको डिफाई करता जा रहा है कि सीबीआई इंडिपेंडेंट नहीं है. क्या इसके लिए हम कोई पीआईएल फाइल कर सकते हैं या किस तरह से इसको इंटरनेशनल लेवल पे इसको एक्सपोज कैसे कर सकते हैं इस डबल स्टैंडर्ड को? हाँ, नहीं, ये बिल्कुल सही सवाल है. यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन ये रिक्वायर करता है कि भाई एक स्वतंत्र जांच एजेंसी बनाई जाएगी हाई लेवल करप्शन या करप्शन से डील करने के लिए, और वो नहीं बनाई गई है हिंदुस्तान में. सुप्रीम कोर्ट ये भी होल्ड कर चुका है कि जब भी कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन होता है, अगर वो कोई हिंदुस्तान के कानून के खिलाफ नहीं है तो उसको इम्प्लीमेंट कराया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए. लेकिन एक हम लोगों का कॉमन कॉज की एक पिटिशन जो मैं ही कर रहा हूँ लोकपाल के बारे में, वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है.
लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कहता है जब जब वो केस हियरिंग पर आता है कि भाई ये लोकपाल का तो मामला अभी पार्लियामेंट में चल रहा है, देखते हैं पार्लियामेंट में क्या होता है। और पार्लियामेंट में उसको सब लटकाया हुआ है। वैसे भी सरकार ने जो बिल बनाया है वो तो जेन्युइन इंडिपेंडेंट लोकपाल बिल है ही नहीं, वो तो लोकपाल बिल के नाम पर एक भ्रष्ट अफसरों को संरक्षण देने का कानून है। तो इसलिए खैर अब ये सुप्रीम कोर्ट कोलगेट के मामले में ये सीबीआई की ऑटोनॉमी का मुद्दा देख रहा है। वो कह रहे हैं कि हम इसको देखेंगे और इस पर आदेश देंगे, तो उसमें हम लोग इसको करवाने की कोशिश करेंगे। मिंटू एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं इलाहाबाद से। वो कह रहे हैं कि देयर इज अ 3 टायर सिस्टम ऑफ कोड, कांट इट बी मेड सिंगल टायर एंड टाइम बाउंड? मे बी देखिए हम लोग ये मानते हैं कि ये कई बार बहुत सारी अपील्स होती हैं, उसको कम करके एक सिंगल अपील, वैसे एक शुरू में केस और एक अपील का प्रावधान होना चाहिए। हम लोग अपने जुडिशियल रिफॉर्म्स के मॉडल में उसी तरह का फॉलो करने की कोशिश करेंगे और उसी तरह के रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। एक सवाल है जो इलेक्शन एक्सपेंसेस है उसके ऊपर कल डिबेट हुई थी शायद कुछ चैनल्स पे, जिससे उनके सवाल आया है कि कह रहे हैं कि क्या वाकई 14 लाख 16 लाख या 40 लाख की जो लिमिट है इसके अंदर नैतिक तरीके से चुनाव लड़े जा सकते हैं? क्या इसको बढ़ाने के लिए हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए? आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए हिंदुस्तान ऐसा देश है जिसमें कि आज तो यही सारी प्रॉब्लम है ना कि वही पार्टियां जीत कर आ पा रही हैं इलेक्शन में जो कि पैसे के आधार पर अपना खूब प्रचार कर लेती हैं, खूब सारे पेड वर्कर्स एम्प्लॉय कर लेते हैं, खूब अपना पोस्टर्स, खूब एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह कर लेते हैं। और इसी वजह से सिर्फ भ्रष्ट पार्टियां जो भ्रष्टाचार के आधार पर खूब पैसा कमा रही हैं वही जीत पा रही हैं। हिंदुस्तान में ईमानदार आदमी कहां से करोड़ों रुपया लाएगा? कोई ईमानदार कैंडिडेट कहां से इतना रुपया लाएगा? देखिए हमारी पार्टी नई पार्टी बनी है, इतने बड़े आंदोलन के बाद बनी, हम लोगों को भी बहुत मुश्किल होगी किसी भी कैंडिडेट को 10 लाख से ज्यादा रुपए देने में, करीब करीब इम्पॉसिबल होगा, लेकिन हम लोग उसी में मैनेज करेंगे। कोई भी अगर हिंदुस्तान में चुनाव फेयर तरीके से होने हैं तो उसके लिए जरूरी है कि बहुत कम पैसे में हो चुनाव। उसके लिए जरूरी है, देखिए इंग्लैंड वगैरह में, कई और देशों में, अमेरिका में तो चुनाव बहुत महंगे हो गए हैं, लेकिन इंग्लैंड और कई और देशों में चुनाव अभी भी बहुत सस्ते हैं, यानी कि बहुत कम पैसा खर्च किया जाता है। जो भी प्रचार किया जाता है अनपेड वर्कर्स जो हैं, वॉलंटियर्स जो हैं, वही प्रचार करते हैं, थोड़े बहुत पोस्टर्स वगैरह लगाए जाते हैं। 40 लाख हिंदुस्तान के लिए बहुत काफी है किसी भी चुनाव में खर्च करने के लिए, इसको बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। अगला सवाल है गोकुल लाहा पूछ रहे हैं, काफी रेलेवेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। ये कह रहे हैं मैं 17 साल का हूँ प्रशांत जी, कॉलेज के एडमिशन शुरू हो गए हैं, कोटास के बारे में क्या किया जाए? बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स कोटा सिस्टम की वजह से सफर कर रहे हैं। देखिए कोटास तो बहुत तरह तरह के हैं। कोटास शेड्यूल्ड कास्ट के भी हैं, बैकवर्ड क्लासेस के भी हैं, उसके अलावा कुछ कोटास जो हैं वो रीजनल इशू पर भी होते हैं कि भाई आपने अगर इस स्टेट से अपना वो पास किया है तभी आपको तो इतना कोटा आपके लिए रिजर्व है वगैरह। ये एक बहुत पेचीदा सवाल है जिस पर कि बहुत और सोचने की जरूरत है, लेकिन हाँ कोटास को कम जरूर किया जाना चाहिए और धीरे धीरे ऐसी कोशिश होनी चाहिए कि पूरा देश में एक बिल्कुल यूनिफॉर्म सिस्टम हो। देश के किसी भी भाग से कहीं पर भी आप जा सकते हैं और हर एक आदमी को इक्वल चांस होगा। लेकिन जहाँ असल में प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे अलग अलग बोर्ड्स हैं, हर स्टेट का अलग बोर्ड होता है, उस हर स्टेट का अलग स्टैंडर्ड होता है, उन सबको यूनिफॉर्म करना बड़ा मुश्किल है। इतने बड़े और विविध देश में एकदम एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाना आसान नहीं होता, लेकिन उसको सुधारने की कोशिश करी जा सकती। एक सवाल है, फ्यूल प्राइसेस के बढ़ने का बड़ा सिस्टेमिक इफेक्ट होता है महंगाई के ऊपर और सीधे सीधे आम आदमी की जेब से पैसा निकलता जाता है, क्या कर सकते हैं? पीआई वगैरह फाइल कर सकते हैं गैस? तो देखिए जो गैस प्राइस बढ़ाने की जो बात हुई है कि $4 से लेकर $8 सीधा कर दिया जाएगा अगले साल से,
इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था के ऊपर, आम आदमी के ऊपर, तरह तरह से इसका इफेक्ट पड़ेगा। अब ये तो बिल्कुल भ्रष्टाचार के आधार पर किया जा रहा है, क्योंकि अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए, अंबानी इसमें सबसे बड़ा प्लेयर है, रिलायंस जो है, उनको सीधा सीधा फायदा पहुंचाने के लिए, जिससे कि उनको लाखों करोड़ का फायदा होगा, उस आधार पर ये फैसला लिया गया। इस पर एक पीआईएल बन रही है, गुरुदास दासगुप्ता एक पीआईएल फाइल करवा रहे हैं। देखते हैं उस पीआईएल में क्या होता है, लेकिन आमतौर पर हमने देखा है कि जहां रिलायंस और ये बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वॉल्व होती हैं, जैसे हम लोगों ने केएन वेदांत का भी पीआईएल किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, क्योंकि जहां बड़े बड़े इतने भारी इन्फ्लुएंसेस इन्वॉल्व होते हैं, तो जब तक जो जज डील कर रहे हैं बहुत ही ईमानदार और बहुत ही स्ट्रांग ना हो, तब तक हम देखते हैं कि वो केस ठीक से डिसाइड हो नहीं पाता। और जैसे मैंने बोला, सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत भ्रष्टाचार है। अभी जो न्यायाधीश हैं उनकी भी, जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी भी रेपुटेशन खराब है, जो आने वाले मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी भी रेपुटेशन बहुत अच्छी नहीं है इस मामले में। प्रशांत जी, समय बहुत कम है लेकिन सवाल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो आखिर में कुछ सवाल ले लेते हैं। एक सवाल है, विक्रम है अमृतसर से, पूछ रहे हैं कि क्या आप बता सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं उनके खिलाफ कुछ केसेस फाइल की गई हो और उनका स्टेटस क्या है? देखिए, हम लोगों ने, जैसे पिछले मुख्य न्यायाधीश थे बालाकृष्णन साहब, वो अब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन हैं, उनका डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का एविडेंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खुद निकाला, करोड़ों के डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स। उन्होंने बार बार झूठे जवाब आरटीआई में दिलवाए, झूठे प्रेस स्टेटमेंट्स इशू करे। इन सब चीजों को लेकर हमने एक कंप्लेंट फाइल करी, क्योंकि प्रावधान यह है कि सरकार के पास अधिकार है कि वो कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट को फॉरवर्ड करे और उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट जांच करती है। हमने सरकार को बोला, कंप्लेंट दी कि भाई इसको आप सुप्रीम कोर्ट को फॉरवर्ड करिए जिससे सुप्रीम कोर्ट जांच कर सके। सरकार ने कुछ नहीं किया। हम सुप्रीम कोर्ट गए उसके खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से बोला कि भाई आप 2-3 महीने के अंदर इस पे फैसला लीजिए। सरकार ने फिर कुछ नहीं किया। हम फिर सुप्रीम कोर्ट गए उसके खिलाफ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो मामला लंबित है। हम ये देखते हैं कि जहां जजों का मामला आता है वहां सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करना चाहता। जजों के भ्रष्टाचार के मामले में भाई भतीजावाद सुप्रीम कोर्ट में भी चलता है। तो लास्ट 2 क्वेश्चंस। एक सवाल है, एक एनआरआई साथी है यूएसए से, कह रहे हैं मेरा वोटर आईडी कार्ड इंडिया का है, बहुत दिनों से मैं यूएस में रह रहा हूँ, भारतीय नागरिक होते हुए भी मैं मतदान नहीं कर पाता हूँ। क्या ये आम आदमी पार्टी के एजेंडा में है कि एनआरआईज के लिए वोटिंग इजी की जाए? कुछ प्लान है, कुछ योजना है इसके लिए? हम लोग ने इस पर अभी कोई ऐसा व्यू नहीं लिया है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हाँ, एनआरआईज जो भारतीय सिटीजन्स हैं उनको वोटिंग राइट्स हिंदुस्तान में होने चाहिए और उनका कोई सिस्टम होना चाहिए कि वो वहीं से वोट कर सके। उसका हम लोग कोशिश करेंगे कोई प्रावधान बनाने की। और एक आखिरी सवाल, बहुत से चुनाव से जुड़ा हुआ इम्पोर्टेंट सवाल है, ईवीएम्स को लेके बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं और बहुत सारे लोगों को शक है कि ये कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, ये सिस्टम जो है गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है रूलिंग पार्टीज के द्वारा। क्या हम इसमें कोई एक्सपर्ट पैनल बना सकते हैं या ऑलरेडी बनाया हुआ है जो इसके ऊपर काम कर रहा है? और देखिए, ये मुद्दा कई बार रेज हो चुका है। एक बार हम लोगों ने जब इस पर थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करी थी तो इलेक्शन कमीशन ने हम लोगों को डेमोन्स्ट्रेट किया था कि इनके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ऐसे हैं जो कि मोस्टली हार्ड वायर्ड हैं, इसमें कोई बेईमानी होने का चांस करीब करीब नेग्लिजिबल है। अब वो कह रहे हैं, क्योंकि फिर से कई एक्सपर्ट्स ने इस पर डाउट्स रेज करे हैं, तो वे कह रहे हैं कि वो एक पेपर ट्रेल भी रखने की कोशिश करेंगे, जिसका एक पेपर ट्रेल रहे। इस पर नजर रखने की जरूरत है, लेकिन मुझे अभी नहीं लगता कि अभी कोई ये सीरियस प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में। ठीक है, सो यू कैन थैंक यू। आप सबको शुक्रिया और खुदा हाफिज।